Hello students, today we are going to learn about statistics standard 12 part 1. There are 4 chapters in your part 1. Today we will start chapter number 1 index number. Weightage in board examination of index number in section A 1 mark MCQ, section B 1 mark short question, section C 2 mark theory or sum, section D 3 mark sum, section F 5 mark sum. Total weightage of this chapter is 12 mark. So let's start index number. Before we go to the definition of index number, we all know that the index number is used to find measures for changes in the value of a variables or the price level. But now it not only used for the changes in the value of a variable, but also index number is used for the find trade, then wholesale price index number, cost of living index number. We can find index number of a human development also, index number of industrial production, index number of agriculture production. So there are many uses of index number. Definition of index number: the percentage change in the value of a variable associated with any item for the given period compared to its value in fixed period is called an index number. करंट ईयर के करंट ईयर्स की जो भी आइटम है उसकी वैल्यू को आप जब फिक्स बेस ईयर के वैल्यू से कंपेयर करके जो परसेंटेज का चेंज मिलेगा उसे इंडेक्स नंबर कहेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर इज फ्री फ्रॉम द यूनिट एज इट इज़ अ रिलेटिव मेज़र. इंडेक्स नंबर रिलेटिव मेज़र है इसलिए वो यूनिट फ्री है. द चेंजेस इन द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल हैविंग डिफरेंट यूनिट्स कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग इंडेक्स नंबर. हेंस इंडेक्स नंबर इज़ अ कंपेरेटिव मेज़र. इंडेक्स नंबर एक कंपेरेटिव मेज़र है. इंडेक्स नंबर इज़ अ रिलेटिव मेज़र शोइंग परसेंटेज चेंज. Index number is a spatial average. It has all the characteristics of an average. Index number एक spatial average है. The situation at two different periods can be compared by ratio with the standard period using an index number. The situation as two different periods. कोई भी दो different periods के compare करके आप index number का use कर सकते हैं. Definition of a base year: the value of a variable for the current period is compared with the value of the variable with a fixed period. This fixed period is called the base year. Base year याद रखने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका करंट ईयर है, मान लो 2020 आपका करंट ईयर है, तो उसका पास्ट का जो भी ईयर रहेगा वो आपका बेस ईयर रहेगा. मान लो 2020 करंट ईयर है तो पास्ट ईयर 2019, 18, 17, 16, तो इसमें से जो भी कोई भी एक आपका बेस ईयर रहेगा. यानी कि जो भी पास्ट का ईयर रहता है वो बेस ईयर रहता है. बेस ईयर याद रखने के लिए आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी बेस ईयर नॉर्मल होना चाहिए, वो एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए. और एक बात याद रखनी है कि बेस ईयर बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर नहीं होना चाहिए. मान लो 2020 आपका करंट ईयर है तो 2018, 17, 16 या 2010 आपका बेस ईयर हो सकता है, मगर 1995, 1997 ये आपका बेस ईयर नहीं हो सकता है. Methods for selection of a base year. There are two methods. Number 1 fixed base method, number 2 chain base method. हम fixed base method को देखेंगे. In this method, a stable period of a year with the usual event or a situation is selected as a normal year or a base year. But sometimes it's difficult to select a normal or a base year. In this case, an average value of a certain years is taken as the value of the variable for the base year. फिक्स बेस मेथड में नाम से ही हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे बेस ईयर फिक्स रहेगा. कोई भी एक ईयर होगा फिक्स रहेगा, उसी को आपको बेस ईयर लेना है. बट कई बार ऐसे होता है कि हमको समझ में नहीं आता, डिफ़िकल्ट होता है कि बेस ईयर हम कौन सा लें. मान लो हमारे पास एक से ज़्यादा पास्ट के ईयर हो. मान लो 2020 करंट ईयर है तो 2016, 17, 18 हमारे पास बेस ईयर है. तो इसमें से हम किसको बेस ईयर लेंगे? तो ये तीनों ईयर की एवरेज वैल्यू निकालेंगे और उसे हम बेस ईयर लेंगे. इस तरीके से हम एवरेज वैल्यू ले सकते हैं. फॉर्मूला फॉर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर:
Index number is equal to value of the variable in current year divided by value of the variable in a base year multiply 100. P1 डिवाइड बाय P0 मल्टीप्लाई 100. 1 करंट ईयर के लिए यूज़ होता है और 0 है वो बेस ईयर के लिए यूज़ होता है. अब हम फर्स्ट इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे. द डेटा अबाउट होलसेल प्राइस ऑफ व्हीट इन रीजन आर एज फॉलोज. टेकिंग द ईयर 2005 एज द बेस ईयर, प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर फॉर द प्राइस ऑफ द आइटम. For the remaining years, state the percentage increase in the price of wheat in the year 2013 from this index number. यहाँ पे आपको 2005 से 2013 तक की वीट की प्राइस दी हुई है क्विंटल में, और आपका इंडेक्स नंबर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 2005. सो 2005 का जो भी प्राइस रहेगी वो आपका बेस ईयर रहेगा. सो यहाँ पे हम लोग बेस ईयर P0 इज इक्वल टू 1650 लेंगे. बेस ईयर 2005 लेना है. इट मीन्स कि आपको हर साल के कैलकुलेशन में बेस ईयर P0 आपका 2005 की वैल्यू 1650 ही रहेगी. सो इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू P1 डिवाइड बाय P0 मल्टीप्लाई 100. P1 जो करंट ईयर रहता है, सो 1650 आपका करंट ईयर है 2005 डिवाइड बाय P0 बेस ईयर 2005 लेना है, इसलिए 1650 मल्टीप्लाई 100. 1650 कट होगा, आपका आंसर रहेगा 100. ऐसे ही 2006 अब आपका करंट ईयर है, सो तो P1 आएगा 1690. 2005 बेस ईयर लेना है हमको. 2005 की वैल्यू है 1650 मल्टीप्लाई 100. 1690 डिवाइड बाय 1650 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 102.42. सेम 2007 की प्राइस है 1730, वो आपका P1 रहेगा डिवाइड बाय 1650 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 104.85. 1750 डिवाइड बाय 1650 मल्टीप्लाई 100, आपको आंसर मिलेगा 106.06. 1810 डिवाइड बाय 1650 मल्टीप्लाई 100. ऐसे ही हर साल आप लोगों को जो करंट ईयर है वो P1 में लेना है, और जो बेस ईयर 2005 की वैल्यू है वो आपको P0 लेकर आपको कैलकुलेशन करनी है. सेम इसी तरीके से लास्ट में 1950 डिवाइड बाय 1650 मल्टीप्लाई 100 करके आपको 2013 का इंडेक्स नंबर मिलेगा, वो है 180. आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2013 में कितना इंक्रीज हुई है वीट की प्राइस. तो यहाँ पे इंक्रीज लास्ट में आपको लिखना है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ वीट इन द ईयर 2013 इज. जो आपको 2013 का इंडेक्स नंबर मिला है उसमें से जो आपका बेस ईयर का इंडेक्स नंबर है, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 ही रहेगा, वो आपको माइनस करना है. सो 118.18 माइनस 100 करोगे तो आपको 18.18% आंसर आएगा, जितना इंक्रीज हुआ है 2005 की कंपेयर में. थैंक यू.